Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm sure I'm audible, and in a moment, I'm going to share my screen. Okay, all right. Well, the screen is up. While attempting competitive exams, we always face a problem. And you know what is that problem? The problem is that whenever we see topic, like we are done with the paragraphs, we know how to take an argumentative essay. We are sure about problem and solution paragraph. Like at this stage, we know how to add transitions. We are quite familiar with the thesis statement. We know how we are going to construct and make thesis statements. So all these things are on our fingertips by now. But the problem that is in front of us, this time we want to make it sure that outlining an essay, and when I say outlining an essay, I mean you know what the wants. Outlining an essay does not mean like you just need to outline the essay in your own own. Definitely, we have some rules, we have some instructions given by the examiner, and we are supposed to follow all those pieces of instruction. Outlining an essay works like a CNS, central nervous system. It is important enough once your examiner is not satisfied with the outline of your essay, not only he is going to award you 0 mark, but he is not going to read your essay. That's a sort of insult, academic insult. But before proceeding further, a question pops up in our mind. What do the examiner mean by an outline? After all, what is an outline and why we are supposed to prepare an outline? So let's read out this topic and try to understand what is an outline, and then we will try to analyze the outline, how to make it, how you are going to make the main heading, how you are going to construct the subheading. So each and everything will be done in today's session. Once we will complete today's lecture, you will be able to evaluate yourself, you will be able to construct the outline, so all the things will be there on your fingertips. So let's start reading what is an outline. The very first question that comes in our mind whenever we talk about competitive exams and CSS PMS. So yes, please, Insha, what is an outline? An outline is a list of the information you will be put in your essay. You can see an example of an outline on page 65. An outline begins with the essay's thesis statement, shows the organization of the essay, tells what ideas you will discuss, and shows which ideas will come first, second, and so on. Ends with the essay's conclusion. R- Thank Write you an so much. outline before you. Thank you so much. So this time we have some set rules here in front of you. So every time, whenever we try to proceed further with anything, remember when you were I'm muting yourself, Insha for a while because there's a noise in your background. Remember in your childhood, you always have some rules and regulations to follow. So how on earth it is possible, like you're not going to follow any rule and regulation for the competitive exams? So when we say your essays outline, not outline, please make it sure. A lot many aspirants they commit this mistake, and it's not a mistake, it's a blunder. They put outline, and the examiner is going to you cross the very first heading, that is the outline. So it's not outline, it's outline.
The second point that I want to talk about is it begins with essay thesis statement. Remember here, if the writer of this book is saying the outline begins with the essay thesis statement, and if we are going to follow this book, then we will have to look at the example on page 65. Like, here is the example. In this example, we can say there is no heading. There is no heading of thesis statement. So in case you're going to put thesis statement in the beginning of your outline, you're not supposed to give it a heading. Okay? You're not supposed to talk about the thesis statement as the main heading. Okay? So you need to follow all these things. Mazhar, Iqbal sir, welcome to the session. I'm sure like you are getting me and you're watching all these things. So today we are discussing how to make an outline and we are trying to evaluate the outcomes and the actual procedure. So the first step is, in case you're going to start your essay with an essay thesis statement, you need to put the thesis statement, but the simple thesis statement will be there. You are not supposed to put the title of the thesis statement before writing this statement. Is it clear? The point number one is clear. You are not supposed to give the heading like the thesis statement. There, in the very beginning of this essay, you can easily locate it. The writer has not given any heading. So what we do in the papers, like normally when I evaluate a paper and if the participant is talking about the thesis statement and there is a very, vivid and conspicuous example of the thesis statement that is deviating from the mean and the recommended way. So you're not supposed to do this. This is a mistake, rather blunder. The second point is shows the organization of the essay. That is the second point. For now, I want you to memorize these points. So the basic purpose of the outline is to show the organization of the essay. What do you mean by organization of the essay? Remember, only you, only you know how you are going to start your essay. Only you know what is the main idea of your essay. What if you are going to talk about some random ideas in your essay? How your examiner will come to know about your essay? So your outline is going to talk about the organization. So this organization is very important and it is given by your thesis statement. I'm sorry, outline. The third point is tells what ideas you will discuss and show which ideas will come first, second, and so on. So participants, this is basically the explanation of the point number two. The point number two is about the organization, and the point number three, it is talking about the points number four, second, and third. And lastly, it ends with essay's conclusion. I wish it were really easy to apply all these things like A, B, C in your essay. And the writer has given you 4 to 5 points, and after reading these points, it were really easy to apply and a masterpiece would be there, but it's not the scenario. Writing an outline is definitely a Herculean task. It is definitely going to give you a tough time, but after attending today's session, you will come across a lot many new things. So the first point is your writer, being a writer, you are actually planning something. Like see, you are sitting in CSS and CSS is the name of 12 papers consecutively. Not only in English essay paper, but my recommendation is to make outlines in all of your papers, especially in Islamic studies, especially in political science, especially in all those papers where you feel your points are organized, where you know you're not going to deviate from the main way, from the main path. So the writer, as a writer, and you are showing, the जो examiner है, he is not aware of the great ideas जो आपके mind में है. So you are going to show your writer
अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक अच्छा ऑर्गेनाइज आपकी जो आउटलाइन है, वो एक एग्जामिनर को इजीली जज करने में मदद देता है वे योर स्टैंड है। सेकेंडली, if your outline is not organized, it means automatically your thesis statement and your essay is not organized one. Okay. The third point is keep you from forgetting any important points. Remember, participants, a lot many aspirants they do this mistake. Outline में वो बात लिखी नहीं होगी, ऐसे के अंदर they are going to put all those things that are not the part of the actual outline. Okay, I'm sorry. So imagine something. Imagine a skeleton, जो हम अक्सर बचपन में लैब्स में देखा करते थे। अच्छा, उस स्केलेटन में क्या होता था कि whenever you see a body, अब आपकी जो बोन्स हैं वो तो नजर नहीं आती हैं आपके देखने वाले को। हमारे पास एक बॉडी है, लाइक सी दिस इज अ बॉडी। अब इस बॉडी में nobody is able to see the bone, बट इसका क्या मतलब ये है कि बोन एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या ये मतलब है? इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। इन द सेम वे, जो रीडर है नॉर्मल एसेस के केस में ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटलाइन, लेकिन सीएसएस के पेपर में उसने स्पेसिफिकली आपको कहा कि आपने आउटलाइन बनानी है, और अगर आप आउटलाइन नहीं बनाते हैं, इट मीन कि आप उसको उसकी रिक्वायर्ड चीज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी तक की डिस्कशन से जो 4 पॉइंट्स हमारे सामने आए वो ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट ये होगा कि आप थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देंगे। आपकी आउटलाइन का मकसद आपके ऐसे को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करना है। अगर आपकी आउटलाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है तो आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत है। थर्ड नंबर पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मदर साहब एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, ये वो पॉइंट है जहां पे बहुत से एस्पिरेंट्स धोखा खा जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि पहले पॉइंट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। आज का सेशन ये हमेशा के लिए क्लियर कर देगा कि पहले कौन सा था, सेकंड कौन सा था और थर्ड कौन सा है। और आज ही के सेशन के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने ऐसे की कंक्लूजन कैसे पुट कर ली। तो जी अब हमें स्केलेटन वाली एग्जांपल भी पता चल गई। आगे बढ़ने से पहले एक आउटलाइन के ऊपर देखते हैं। एक आउटलाइन को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक आउटलाइन है, डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक दफा सिर्फ देख लें। जो जो इसको देख ले वो चैट बॉक्स में डन लिख दे। ओके, किसी ने भी नहीं इसको देखा, ग्रेट। अब हमारे पास इस आउटलाइन में देखने वाली चीज क्या थी? 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किया। देखिए, जब आपने अपने ऐसे को लिखा या ऐसे को लिखने का प्लान करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि मेरे ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी। देखिए, कोई सा भी टाइटल आप उठाते हैं ना, उस टाइटल की थीसिस स्टेटमेंट तो डेफिनेटली आपको बनानी होगी। आउटलाइन बनाने से पहले उसकी थीसिस स्टेटमेंट को आपने देखना है
कि वो क्या होगी। उस ऐसे के पैराग्राफ्स में, मेन बॉडी में कितने पैराग्राफ्स होंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आपने आंसर करना है। पहला कि क्या मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट मैंने बना ली है, अगर बना ली है तो बहुत अच्छा, नहीं बनाई तो उसको देखो कितने पैराग्राफ इन टोटल उसमें होंगे। फिर उसके अंदर आप अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स को देखने की कोशिश करोगे और फिर बाकी पॉइंट्स को देखने की कोशिश करोगे। अभी के केस में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है इसमें मुझे बताएं, मेल बॉडी के अंदर जो है वो कितने पैराग्राफ्स बनेंगे। एक सिंपल सी आउटलाइन देखते हैं और ये मुझे जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। अभी मेरा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पॉइंट नंबर 2 के रिलेटेड है। 2 का रिलेटेड ये वाला वेरी एक्सपेंसिव एक मेन हेडिंग है, न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेंसिव। कोई मुझे बता सकता है कि 2 की कैटेगरी में कितने पैराग्राफ्स हैं जो टोटल बनेंगे, कितने पैराग्राफ हैं जो 2 की मेन हेडिंग के नीचे हम पुट करेंगे, स्पेशली मदर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो 2 में हम जो है कितने पैराग्राफ को पुट करेंगे। 2 में हम 2 पैराग्राफ्स को पुट करेंगे। Right. जी। ओके, ग्रेट हो गया। अभी के लिए हमने आपके आंसर्स को ले लिया, अब हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं हाउ टू राइट एन आउटलाइन। देखिए अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको नहीं पता। काइंडली इसको सीखिएगा। माय स्पीड विल बी डेफिनेटली स्लो, आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर एट अ स्नेल्स पेस। मेरी कोशिश होगी कि इन चीजों को आप हमेशा के लिए याद रख सकें, समझ सकें। ठीक है। सो हम जो है वो अब कोशिश करते हैं हाउ टू राइट एन आउटलाइन को देखने की। So before writing an outline, you must go through the usual process of gathering ideas. अगर आइडियाज ही जहन में नहीं है तो आप कैसे लिख सकते हो। और आइडियाज गैदर कैसे करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए। आइडियाज गैदर कैसे करोगे, फ्री राइटिंग के जरिए। आइडियाज गैदर कैसे करोगे, जो जो भी चीज जहन में आएगी उससे मुतल्लिक। और ये अगर उससे पहले, पेपर से पहले रीडिंग नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो आइडियाज पेपर में अचानक से नहीं आ सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आइडियाज वहां पे बैठे बैठे जनरेट होना शुरू होते हैं। अक्सर जब आपको कोई भी ऐसे दिया जाता है, आपको वीकली बेसिस पे आपकी क्लास में के ग्रुप के अंदर जो है वो हम रिसर्च पेपर भी शेयर करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक सेल्फ ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, एक डायलेमा में आ जाते हैं कि यार पता नहीं इसको करने का कोई फायदा है या नहीं है। लेकिन जब वो करते हैं तो उन्हें फिर पता चलता है कि इनका क्या क्या फायदा था। तो ये आइडियाज वहां से आते हैं। देखें कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऐसे, इट इज नॉट द केस दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ लैंड ऑफ नोवेयर। ये वहीं से आता है और डेली बेसिस पे अब हम जो है वो आपको, जो मैं डॉन का आर्टिकल रिकमेंड करता हूँ उसके साथ मैं ऐसे का टॉपिक भी बता रहा होता हूँ। आप अगर सिंपली अपने एक रजिस्टर मेंटेन करते चले जाएं और उसमें जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स को जो है वो एक पेज पे लिख के थोड़ा सा उनके बारे में डाटा जो है वो गैदर कर लें, पढ़ लें, वो 10-15 मिनट इसको दे दें, तो आपका ये जो डाटा कलेक्शन है ना ये हल हो जाए। कोई टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं जिसके बारे में आपके पास आइडियाज ना हो। ठीक है। अच्छा, इनको जो है वो गैदर किया पेपर में बैठ के, जो पहले जहन में था, और उसके बाद उनको एडिट किया। एडिट करने के बाद आपने देखा, ऑब्वियसली टॉपिक पहले आपने चूज किया होगा कि मैंने किस पर काम करना। आउटलाइन जो है वो बनाना एक यूजफुल प्रोसेस होगा। ऑर्गेनाइज करना, देखो ये ऐसे ही है कि आपने कोई मकान तमीर करना है और उससे पहले सीमेंट, सरिया, बजरी, हर चीज को आपने इकट्ठा करके रख लिया, ऑर्गेनाइज करके रख लिया। अब ये जो आउटलाइन है इसका मकसद ये है चीजों को जोड़ना। जो आइडियाज हैं आपके जहन में उनको इकट्ठा करना, उनको नंबरिंग देना कि भाई पहले मैं इस पे बात करूंगा। आपने एग्जामिनर को कहा कि एक रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, इस रास्ते पे जो है वो इस जगह के ऊपर मैं एक मैप देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो ये चीज आएगी, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे आएगी।
अक्सर केसेस में एग्जामिनर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन जो है वो आपके अपने सामने रखते हैं, उसके मुताबिक पुट करते हैं. If you have not mentioned a thing in your outline and you're going to talk about the same in your actual paper, तो वो आप एग्जामिनर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप ऐसा नहीं करेंगे. ये चीज चीज इसे इग्नोर ना कीजिएगा. अब आप भी तो कंफ्यूज हो सकते हैं. 3000 वर्ड आपने लिखने हैं, तो अब यहाँ पे भी आपको जो है वो आउटलाइन मदद देती है. लेकिन हर चीज का एक तरीकेकार होता है. ऐसा नहीं है कि इसका कोई तरीकेकार ना हो. आपने आउटलाइन के जो मेन, ये जो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मेन आइडिया, सेकंड मेन आइडिया, थर्ड मेन आइडिया, जो मेन टॉपिक्स के ऊपर आप बात करेंगे, याद रखिएगा कि इन्हें आप रोमन से, प्रेफरेबली रोमन से इनको डिपिक्ट करेंगे. यानी जो हमारे पास मेन आइडियाज यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे रोमन्स में हैं. ठीक है, ये हम रोमन्स में लिखेंगे. इनको हम कभी भी जो है वो 1 2 3 4 में नहीं लिखेंगे. ये बात क्लियर हुई. जब हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, थीसिस स्टेटमेंट लिखा, पैराग्राफ लिखा, बॉडी पैराग्राफ लिखा, सब के सब रोमन्स में इसी तरह से आएंगे. अब उसके बाद, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हम ये करेंगे कि अब जो है हम इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ये सब हेडिंग लिखने की कोशिश करेंगे. अब सब हेडिंग जो है वो किस बला का नाम है? जब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में हमें पैराग्राफ ज्यादा ऐड नहीं करने हैं, लेकिन फर्स्ट मेन हेडिंग में तो ऐड करेंगे. अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से चीजें इंडेंटेशन में चले. जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो कभी भी अपने बॉस के इक्वल खड़े नहीं होते हैं. आपने ये रूल देखा होगा. ये मेन हेडिंग है और ये सब हेडिंग है. जब सब का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है ये उनके बराबर नहीं होंगे, उनसे थोड़ा सा नीचे होंगे या आगे करके होंगे. तो इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेशन पढ़नी है. और इसका पढ़ा लिखा तो जवाब ये है कि आपके एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि ये सब हेडिंग है और ये मेन हेडिंग है. ये ऐसा ही नहीं है. अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोल के देखें, वहां पे भी आपको ये सारी की सारी चीजें जो नजर आती हैं. अगर हमें सब हेडिंग से भी एक स्टेप आगे जाना है, तो फिर हम जो नंबरिंग यूज करेंगे वो अरेबिक न्यूमरल्स, यानी ये 1 2 3 जो है वो यूज कर सकते हैं. अगर हम एक नक्शा देखना चाहें, इफ वी वांट टू हैव अ लुक ऑन द मैप of an actual outline, like how an outline looks like, then this is the actual sample of that. It will start from introduction, then the first main idea, then the first 14 points. Just see the difference there. Like the first main idea and the point number A, a bit indentation is there. Remember? Then first detail and the second detail. So see, what I want to emphasize here is that here you need to note down like the Romans, like 1 and 2, they are in the beginning. The subheadings A and B, they are somewhere here in the middle, but the point is that their alignment is same. Okay. Yes, in English essay paper, the examiner is going to mind it if your A is here, if your B is here. The location of these particular subheadings, yes, it is important. Because if you just put a bit here, it means it is a main heading. If you move a slightly there on the right side, it means it's a sub detail. Okay. तो अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते. आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये था और ये इस साइड पे क्यों नहीं जा सकता और ये इधर ही क्यों आएगा और क्यों जरूरी है इसका एक अलाइनमेंट में होना. इज इट क्लियर कि क्यों जरूरी है इसका एक अलाइनमेंट में होना? ये पता चल गया आपको? कितने लोगों को ये पता चल गया कि हमें क्यों अलाइनमेंट में रखना जरूरी है? जैनब, नईम, सादिया, ग्रेट, मजर, ग्रेट. ओके. अब जी हम आगे चलते हैं. ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इसमें देखने की कोशिश कीजिए. वही बात उसने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल इज दैट, ये उसने सारे के सारी हमें एक आउटलाइन प्रोवाइड किया.
थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आउटलाइन आपने देख ली। अब वो कहता है कि आपने जो है एक आउटलाइन पढ़ी है अभी, एक एग्जाम्पल वो देने की कोशिश करता है। ठीक है। अब जो है इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल पे जाने की लेके चलूं आपको, कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पॉइंट मेरा ये है, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज हमने लिखी है, क्या ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, थीसिस स्टेटमेंट है, या कुछ और है? जिस पर मैंने टिक मार्क किया है, इसके बारे में मुझे जरा बताइए क्या है। सर हर मेन हेडिंग में कितने पैराग्राफ बनेंगे, और ये क्वेश्चन जी अभी हम क्वेश्चन ये क्लियर करते हैं, अभी हम इस पर बात करते हैं ना। हम इंशाल्लाह इसको जो है वो देखते हैं, इसको आंसर करते हैं, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास में। ओके, ग्रेट। ये हमारे पास जो है वो मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये जो बी वाली जो है वो, ये हमारे पास सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग नहीं है। अच्छा जी। अब ये मुझे बताइएगा कि न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट सेफ, ये हमारे पास मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है? मेन है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये कहूँ न्यूक्लियर पावर इज नॉट अ गुड सोर्स, गुड एनर्जी सोर्स फॉर द वर्ल्ड, मेन है, सब है, थीसिस है, ये क्या है? वेरी गुड जी, हादिया ने बताया ये किस स्टेटमेंट है जो उसने टॉप पे पुट किया। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक आसान सी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखें अभी जो है मैं आपको एक टाइटल दे रहा हूँ ऐसे का, इसका नाम है द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, योगा का फायदे जो है वो हमने उसके ऊपर बात करनी है। क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि सर ये मेन हेडिंग है, ये जो है वो यहाँ पे सब हेडिंग है, ये थीसिस स्टेटमेंट है, ये जो है वो हमारे पास कुछ और है, ये कंक्लूजन है। मैं मेन हेडिंग के लिए आप एम लिखेंगे, स्पोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो उसके लिए आप, या सब हेडिंग्स के लिए आप जो है वो एस लिखेंगे, या सी के लिए, कंक्लूजन के लिए सी लिखेंगे। स्पोर्टिंग डिटेल्स या आप सब हेडिंग्स को स्पोर्टिंग डिटेल्स या पॉइंट्स पे कहते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, डिवेल्प्स क्लियर थिंकिंग क्या मेन हेडिंग है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, सीसी स्टेटमेंट है, क्या है जी ये आपके पास? क्या लगता है जी आपको जो है वो? ए वाला मदर साहब कभी भी मेन हेडिंग नहीं हो सकता। योगा डिवेल्प्स क्लियर थिंकिंग, नेवर एवर ये हमारे पास सपोर्टिंग पॉइंट होगा, ये किसी मेन पॉइंट को, ये क्लियर थिंकिंग से क्या लगता है ये किसको सपोर्ट कर रहा होगा? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माइंड, हाँ, उसको जो है वो कर रहा होगा। अच्छा जी अब मुझे बताएं कि फिजिकल बेनिफिट मेन हेडिंग होगा या सब हेडिंग होगा? फिजिकल बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स मेन होगा, सब हेडिंग होगा? लेट्स सी जी, सबके आंसर्स हैं। आई वुड डेफिनेटली वेट, ये सभी जो है वो इस पे करें। वेरी गुड जी, उन तमाम के लिए जिन्होंने लिखा कि ये मेन हेडिंग है, नहीं ये सब हेडिंग कैसे हो सकता है, ये मेन हेडिंग है। फिजिकल बेनिफिट्स जिसको एक्सपेंड किया जा सके फर्दर, देखिए मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको आप खोल सकते हैं, मजीद खोल सकते हैं। आप डिवेल्स क्लियर थिंकिंग को आप कितना खोल सकते हैं, उसमें एक ही पैराग्राफ बना सकते हो। लेकिन फिजिकल बेनिफिट्स में तो आप काफी चीजें, लाइक मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, improve digestion, help you feel calm and peaceful, लाइक वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये बताइएगा नंबर सी पे, improve कंसंट्रेशन, क्या ये मेन हेडिंग है, क्या ये स्पोर्टिंग पॉइंट है, कंक्लूजन है, ये क्या है? नंबर सी, सी डॉट लिख के आंसर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। सी डॉट जो है वो लिख के ताकि मुझे पता चल सके। ये बिल्कुल हुसैन आप ठीक कह रहे हैं, ये स्पोर्टिंग है। एक्सेलेंट। रिड्यूस फियर्स एंगर एंड वरी, डी।
डी क्या है जी? डी क्या है? डी क्या है जी? ओके जी, मजहर साहब, क्या है डी? डी हमारे पास क्या है जी? डी हमारे पास वोटिंग है। ई क्या है जी? ई, ई क्या है एडवर्टिजमेंट्स? ई मेन हेडिंग है, जैनब ने लिखा, हादिया ने लिखा, सादिया ने लिखा, शुक्लैन साहब ने लिखा, ग्रेट। मेंटल बेनिफिट, ग्रेट हो गया। ओके अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स मुझे बताइएगा, जी को पढ़िएगा। डूइंग योगा रेगुलरली कैन बी गुड फॉर योर माइंड, योर बॉडी एंड योर इमोशन। डूइंग योगा, ये क्या है जी? मेन है, सब है, कंक्लूजन है, या कुछ और है? इसको जरा देखिए, कोशिश करें। यस जी, सभी के सभी। अच्छा, ये जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। देखिए उसमें, जिसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स को समराइज कर रहा है, वो थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट को ही खोला तो ये सब बन गए। ठीक है। अच्छा जी, अब जी, मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये क्या है? नंबर के पे क्या है? स्पोर्टिंग है या मेन है? क्या है? स्पोर्टिंग है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो है वो आई वाला पढ़ते हैं, बल्कि एल वाला पढ़ते हैं, ये एल है। देयर फोर, टू बिल्ड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, कंसिडर डूइंग योगा। ये क्या है जी? एल वाला जो है वो। एक्सीलेंट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जनाब, यहाँ पे कंक्लूजन। तो अभी के लिए क्या मैं ये समझ लूं कि हर एक को पता चल गया कि स्पोर्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिससे आप सी एस एस पी एम एस में एक नया पैराग्राफ तो शुरू करेंगे, लेकिन उस पैराग्राफ को फर्दर एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। जो बात उसमें शुरू करेंगे वहीं के वहीं खत्म करेंगे। मेन आइडिया से मुराद वो आइडिया है जिसके अंदर कई पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे हमारे पास मेंटल बेनिफिट्स हैं, अब मेंटल बेनिफिट्स में रिड्यूस फियर, एंगर एंड वरी पे आप एक पैराग्राफ बना सकते हो। फील काम एंड पीसफुल पे एक बना सकते हो। ठीक है। फिर जो है आप इन पर बना सकते हो, और कंक्लूजन और ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पे एक ही पैराग्राफ होगा। क्या यहाँ तक मैं एज्यूम कर लूँ कि आपको आउटलाइन बनाते हुए ये चीजें कैसे जनरेट करनी है, ये सारी की सारी जो है वो पता है, ये पता चल चुकी है? इज इट क्लियर? अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं, तो नंबर 4 के ऊपर इन तमाम को आपने, ये एक्टिविटी नंबर 1 है आपके लिए आज की, इन तमाम को आपने अलाइन करना है, लिखना है। पहले जो थीसिस स्टेटमेंट है, फिर मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, करते करते कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, कंक्लूजन तक पहुंचना है। जैसे ये बंदा जो है वो बेचारा सर के बल जो है वो उल्टा होके लेट गया हुआ है ना, इस तरह की आउटलाइन नहीं बनानी है आपने। आपने कोशिश करनी है कि ठीक वाली बनाए। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका सर नीचे हो और लेग्स वो ऊपर करके बिल्कुल मंकी की तरह बैठा हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इवेल्युएटिंग एन आउटलाइन, एक आउटलाइन को आप इवेल्युएट कैसे करते हो? अब आपने तो बना ली, आपको लगा कि आपने बड़े अच्छे से बना ली, लेकिन कैसे चेक करोगे कि यार जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल अच्छा भी है या नहीं है? देखिए, आउटलाइन बनाने से पहले मैंने एक घर बनाना चाहा, तो मुझे पता है कि मेरे पास मटेरियल कैसा है। मुझे पता है कि मेरे पास पक्की ईंटें नहीं है। क्या उससे मैं एक देर का घर बना सकूंगा? मुझे पता है कि अच्छा, एजम्पशन अप्रूव्ड थैंक यू जी, नहीं बना सकूंगा। देखिए, आपने अपने ऐसे के पेपर के लिए ना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मटेरियल आपके साथ टाइम एंड अगेन हम शेयर करते हैं, आज वीकेंड है, मैं कल मॉर्निंग में भी एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा, उसको अगर मैं कहूँ हिफ्स कर लें तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो बहुत रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, और मटेरियल आपको अपने पेपर्स में से, इतने जीनियस तो हम लोग हैं नहीं कि हम पाकिस्तान के
मामला जो है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर लें और बाकी चीजें हमारे फिंगर टिप्स पे हों, तो जो आर्टिकल 5 से 7 पेजेस का आता है उसको जरूर पढ़ लीजिए। अब उनको पढ़ने से डाटा आ जाएगा, तो फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट एंड टॉपिक डेवलपमेंट तक करना है। ऑब्वियसली आप सेंड करेंगे और मैं चीजें देखता हूँ और मैं जरूर बताता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पिक्चर की फॉर्मेट में शेयर किया करें। पिक्चर के फॉर्मेट में उसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए आसान हो जाता है। जो 1 पेज या 2 पेज की असाइनमेंट होती है वो वाली, जो ऑब्वियसली बाकी हैं उन्हें तो हम अपने रीडर में जाके उससे मैं करता हूँ, तो ये इंस्टेंटली जो है वो उसको आप जरूर भेजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होगी, स्पोर्ट कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस तरह से होगी। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपने करनी है तो ऐसा ना हो कि पहले सोल्यूशन पैराग्राफ है एंड के ऊपर एक प्रॉब्लम पैराग्राफ है। अगर ऐसा है तो ये गलत है। इसी तरह से स्पोर्ट आपने देखनी है, ये बातें हैं इवेल्युएशन पे मैं करूंगा। तो अब आपको लगेगा कि सर जो है वो फर्जी बातें करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल डोमेन में लेकर जाना चाहता हूँ। अभी हमने एक आउटलाइन पढ़ी, वही अभी जो हमने देखा था। अब आपने मुझे बताना है कि इस आउटलाइन के अंदर जो है वो क्या क्या कुछ था। उस आउटलाइन को भी देखा आपने, एक और आउटलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैं रीडिंग करता हूँ, एक छोटा सा जो है वो आपके पास ये वाली उसने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो है वो क्या है ये समझना है, ये उसने इंफॉर्मेशन दी है। ये कुछ लोग हैं, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग। In 1848, gold was discovered in California. People from all over the world rushed to California to look for gold. They wanted to become rich. This was called the gold rush. कहानी इतनी सी है, 1848 में कैलिफोर्निया में गोल्ड डिस्कवर हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपने पढ़ लिया। इसको गोल्ड रश कहते हैं। इसके ऊपर अब उसने थीसिस